evening, beta. Good evening all. Myself Dr. Dipali Mehta. I welcome you all on behalf of Ignited Mind by PHF. Today is the 11th session of our very famous series, Guruji Ke Saath Guruvar. I am very happy to introduce today's speaker and very best friend of mine, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. We spent golden time of our college days together. From that time, she is very hardworking and passionate. You all know her because of her daily rubrics. These rubrics are helping us in our practice. She is also lecturer in VYC Medical College, Kolhapur. She has 20 years of experience. She is working on mind method for 8 to 9 years. Today she is talking on subject behavior problem of children. Now, without wasting much time, I request her to start with the session. Thank you. Welcome, Mansi. Very much. There are few things which I also have to tell about Mansi. She is one of the main key members of PHF. Okay, and Dr. Mansi is the co-editor, in fact, the executive editor of the journal that PHF is going to launch, inshallah, in this year only. So, Dr. Mansi, I have great hopes from Dr. Mansi, and she will prove to be what I believe about her. So, beta, start karo. Thank you, sir. God bless you. Thank you for Dipali for warm welcome. So let us start with today's lecture. But I want you all to ask one question in the starting of the session only. Do you feel that organon is necessary to treat the cases in homeopathy in regard with homeopathy? Anyone want to share anything? Is Hello, organon madam ने necessary? पूछा है. Madam ने पूछा है. Yes, हाँ, okay. Share your thing. Sorry. Okay. Yes, क्यों लगता है आपको necessary बोलिए? Because there are a few people who feel that organon is not necessary. Only materia medica, you can master repertory and you can treat all type of diseases. But the main basic, what we can say, it is a Bible of homeopathy, as we all know. But we don't study organon in the college because of many things. Okay, so I will because it's a very boring topic. That is what we used to feel in college. Yeah. Yes, because it's boring and it has not taught by anyone, or no one says its importance in the college itself. So that's why we keep it aside or as a optional subject. But as far as homeopathy is concerned, what I have learned through Liaquat sir's seminar as well as CTPs. So sir always says that organon is the basic thing to treat the cases, any type of case. Whenever you get difficulty, you just open the organon and you will get everything in the organon. So just one aphorism. I will read one aphorism, which is, though seems boring, but it is very, very related to today's topic. Okay. So aphorism number 77. Those diseases are inappropriately named chronic, which persons incur who expose themselves continually to avoidable noxious influences, who are in the habit of indulging in injurious liquors or ailments, are addicted to dissipation of many kinds, which undermine the health, who undergo prolonged abstinence from things that are necessary for the support of life, who reside in unhealthy localities, especially marshy districts, who are housed in cellars or other confined dwellings, who are deprived of exercise or of open air, who ruin their health by overexertion of body or mind, who live in a constant state of worry, etc. These states of ill health, which persons bring upon themselves, disappear spontaneously, provided no chronic miasm lurks in the body. Under an
improved mode of living, and they cannot be called chronic diseases. So in the classification of chronic diseases, Dr. Hahnemann has said this, and we can relate to this in today's life, isn't it? Because what Hahnemann has said about these chronic inappropriately named, that means these are the lifestyle diseases, what we call it as. So in today's era, we are getting more and more lifestyle diseases. Like, see, we have increased the number of diabetic patients. In fact, juvenile diabetes also have increased so far. Okay, diabetes, hypertension, these kind of diseases are increasing. Mental disorders, depression. So these are the lifestyle diseases, and the most common which we get in children nowadays is behavioral problems of the children. So what do you mean by behavior? So behavior is what? Behavior is manner of acting. Okay, and the psychological definition of behavior is the aggregate of the responses, reactions, or movements made by an organism in any situation. Okay, so behavior को हम अगर हिंदी में बोलते हैं तो व्यवहार बोलते हैं, या मराठी में जैसे बोलते हैं वर्तणूक, जो behave, जैसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, behave yourself, how you are behaving in the society. Okay, so that is the manner displays where you have come from and how your upbringing is done. Okay, and then problem is what? Problem is a state of difficulty that needs solution. Okay, so that means समस्या. तो behavior problem मतलब जो बच्चों के behavior में आने वाली समस्याएं हैं. तो these are the most common things which we get in children nowadays. All the mothers will agree. So as we know, children, they have their own qualities like mischievousness. एक बचपना होता है उनमें, तो होना चाहिए एक haughtiness, या फिर जो impulsive behavior है, या फिर जो defined behavior है, तो that is common in children. But अगर ये एबनॉर्मल हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, हद से ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम मॉर्बिड बोलते हैं. तो दैट मीन्स दैट गोज टू द डिसीज पार्ट. ओके, हेल्थ टू डिसीज जाता है पर्सन. तो कौन कौन से है कॉमन जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है बच्चों में, तो उसके डिसऑर्डर्स कुछ कैटेगरीज किए गए हैं. तो उसमें से 2-3 है जो बहुत ज्यादा कॉमन है. One is oppositional defined disorder, second is conduct disorder, and third is attention deficit hyperactivity disorder that we know, ADHD. Okay, so what is oppositional defined disorder? So this is seen in the children which are under the age of 12 years. Okay, and the ratio for boys to girls is 2:1. Okay, so what are the typical behaviors these kind of children they have? That is, they get easily angered, annoyed, or irritated. They have frequent temper tantrums. They argue frequently with the closed relatives or closed adults which they are living with, like parents, grandparents, etc. Okay, they will refuse to obey the rules, seems to deliberately try to annoy or aggravate them. They have low self-esteem and low frustration threshold. मतलब उन लोगों में frustration बहुत जल्दी आ जाता है. They seek to blame others for misfortune and misdeeds. Okay, कुछ भी गलत हो जाए तो वो फौरन दूसरों को blame करते हैं. They intend to blame others. Then coming to the next, that is conduct disorder. So conduct disorder, what is conduct disorder? Like we call the children bad kids. Okay, जो स्कूल में होते हैं, जो बदमाश बच्चे बोलते हैं हम लोग, तो that are they come in this conduct disorder category. So this is in this category, the ratio from boys to girls is 4:1.
Okay. So what are the typical behavior in this category we see? So it is frequent refusal to obey parents or other authority figures. जो भी पेरेंट्स है या फिर स्कूल में भी टीचर है, क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है, जो भी है, तो उनको वो ओबे नहीं करते, डिसोबीडियंट हो जाते हैं. रिपीटेड अब्सेंटीज होती है. टेंडेंसी टू यूज ड्रग्स, इंडल्जिंग सिगरेट्स एंड अल्कोहल एट अ वेरी अर्ली एज. Lack of empathy for others, being aggressive to animals and other people, or showing sadistic behavior, including bullying and physical or sexual abuse. Keenness to start physical fights. That means they जल्दी से फिजिकली फाइट शुरू कर देते हैं, वर्बल से ज्यादा फिजिकली, और फिजिकली फाइट्स में वो वेपन्स भी यूज करते हैं. जो भी उनके हाथ लग गया तो वो दे कैन यूज दैट. Frequent lying, झूठ बोलना. Criminal behavior such as stealing, deliberately lighting fires, breaking into houses. A tendency to run away from home, घर से भाग जाते हैं. And the most worrying thing is suicidal tendencies. Though it is rare, but it may become common, so we have to be careful about this. Okay, so treatment part, as we see in allopathic system of treatment, there is no treatment. Actually, they say early detection is important. Prevention is better than cure. But what if we get a child with this such kind of behavior problem, and then we cannot say prevention is better than cure. We have to treat that child. So I feel really happy that we are homeopaths. We are chosen one. We can treat such kind of cases with homeopathy very easily. Okay, so let us move to the one case. So this is a case of a boy. Actually, his mother is a homeopath. So she contacted me through text or telegram, and she asked for consultation. So we got connected on a video call, and she started narrating. She said, I thought she was consulting for herself, but she was sitting with her son, which is 13 years old, I think. So she, when we started, she said कि मैम ये मेरा बच्चा है और इसके लिए मुझे कंसल्ट करना है. So I said, okay, क्या है उसको, प्रॉब्लम क्या है. So she said, she started narrating that he is having bronchitis and skin allergies, then gluten allergy, and these are the 2-3 things which he was suffering as a child. Okay, so she has been giving him one remedy for bronchitis. She went up till 1M, 10M तक गए, लेकिन ब्रोंकाइटिस जो है कम होता है, लेकिन पूरा जाता नहीं है. तो जरूरत पड़ती है बार बार उसको, वो बार बार बीमार गिरता है. और अभी ये हुआ है कि द मोस्ट वर्स्ट कंप्लेंट इज हेडेक. तो हेडेक जो है वो बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है उसको. तो मैंने पूछा कि क्या हम उससे बात कर सकते हैं बच्चे से. तो बोली हाँ ठीक है. So I started conversing with the child, and just to make him comfortable, I asked him, yes, बेटा बोलो क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कौन से स्टैंडर्ड में हो. तो वो बच्चा है ना, उसका हेयर स्टाइल जैसे आजकल के बच्चों का होता है, वो यहाँ से कट करके ऊपर रखते हैं. So that was his hairstyle. He was wearing a t-shirt, okay, and he was not like, मतलब मूड में इतना नहीं था कि वो मुझसे बात करे. तो जब भी मैंने उसको पूछा कि नाम क्या है, तो उसने ऐसे आ रहा हूँ. तो मैंने बोला क्या है, कौन से स्टैंडर्ड में हो, 9th में हूँ. तो ऐसे मतलब जैसे वो हेजिटेंट बोल सकते हैं, टिमिड बोल सकते हैं, जो भी, लेकिन वो उसका ध्यान नहीं था इतना कि बात करनी है. तो फिर मैंने पूछा कि क्या है आपकी कंप्लेंट, क्या है, क्या होता है आपको. तो बोला हेडेक होता है. बोला कि कब होता है हेडेक. तो उसने कहा कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो हेडेक होता है. तो मैंने पूछा कि अच्छा, तो क्या करते हो फिर. तो बोलता है स्कूल में जाता हूँ तभी मुझे हेडेक होता है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है.
तो मैंने पूछा अच्छा तो जब आप घर पे होते हो तब होता है क्या, मतलब हॉलीडेज पे घर पे है तो होता है क्या? तो बोले कि नहीं, जब मैं हॉलीडेज में घर पे हूँ तो नहीं होता है, अगर हुआ भी तो इतना नहीं होता है, लेकिन जब मैं स्कूल में हूँ तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ स्टडीज पे। और उसकी मम्मी ने बताया कि जब एग्जाम का टाइम होता है तो ये हेडेक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उन लोगों को वहाँ उसको जाके स्कूल से घर पे लेके आना पड़ता है, इतना हेडेक होता है। तो दिस वाज द कंप्लेंट। देन आई आस्क्ड हिम कि क्या करते हो फिर आप जब हेडेक होता है, अगर आप आ भी गए घर पे तो क्या करते हो? तो बोला कि मैं आई यूज मोबाइल। सो आई सेड ओके, सो व्हाट डू यू डू ऑन द मोबाइल? सो ही सेड आई वॉच स्टफ। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट स्टफ डू यू लाइक? तो ही सेड कॉमेडी, मुझे कॉमेडी अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा कॉमेडी, तो कॉमेडी में क्या अच्छा लगता है? नहीं कॉमेडी अच्छा लगता है। मैंने बोला, ठीक है, तो मोबाइल अगर आप लेके बैठते हो तो वो मोबाइल से आपको नहीं डिस्टर्ब होता क्या? तो बोलता है कि नहीं मोबाइल से डिस्टर्ब नहीं होता, मोबाइल मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो देखते रहता हूँ। और क्या पसंद है पूछा तो बोला कि एक्शन गेम्स पसंद है। तो दूसरा चीज फिर मैंने पूछा कि अच्छा तो और क्या आपको है कंप्लेंट, हेडेक के अलावा आपको क्या है कंप्लेंट? तो उसने फटाक से ऐसे किया कि मम्मी। तो मुझे एकदम से समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या है कंप्लेंट? तो बोला कि मम्मी। तो उसके मम्मी ने बताया कि मम्मी इज द कंप्लेंट। सो आई सेड ओके, सो व्हाई, क्यों मम्मी क्यों कंप्लेंट है, मतलब क्या करती है मम्मी ना? तो बोला कि मम्मी मुझे जब मैं मोबाइल देख रहा हूँ तो मम्मी आके मुझे बार बार डिस्टर्ब करती है, तो वो मुझे पसंद नहीं आता, मुझे गुस्सा आता है। और ये सब चीजें बताई। और एक इंसिडेंस उसके मम्मी ने बताया कि उसको गेम्स खेलना भी पसंद है, मतलब बच्चों के साथ जो वॉलीबॉल है, जो भी ऑन ग्राउंड के जो भी गेम्स है उसको वो खेलना बहुत पसंद है। और दूसरी चीज उसको मोबाइल मोबाइल बहुत ज्यादा उसको चाहिए। तो एक चीज थी कि उसको एक गेम चाहिए था, तो वो गेम के लिए वो बहुत ज्यादा मतलब पीछे पड़ा हुआ था। और उसने 4 साल से, उसकी मम्मी ने बोला कि वो 4 साल से लगा हुआ है कि वो गेम मुझे चाहिए, मेरे सब दोस्तों के पास है मुझे चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा भी था। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने सोचा पेरेंट्स ने कि अगर हम इसको वो गेम दे देंगे तो वो गेम में ही लगा रहेगा, वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो उसके लिए ये लोगों ने थोड़ा सा वो टालते रहे कि नहीं हम लोग दे देंगे, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, ऐसा करके 4 साल तक वो बच्चा पीछे लगा रहा कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर उन लोगों ने कैसे करके वो उसको दिला दिया। तो उसके बाद वो खुश हो गया, जब वो चीज उसको मिली वो खुश हो गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसके कजन ने कहीं तो स्नैपचैट वो जो इंस्टाग्राम वगैरह है उस पे एक आईफोन का फोटो डाल दिया कि उसने लिया है आईफोन। तो इसको भी चस्का हो गया फिर कि मुझे आईफोन चाहिए। तो ये लोग बोले कि अभी तो तुमने गेम के लिए ये किया था, अभी वो गेम तुम्हें मिल गया, अभी आईफोन क्यों चाहिए तुमको? तो बोला नहीं मुझे चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। तो ये गेम जो है वो हम लोग वापस कर देंगे और वो आईफोन लेके आएंगे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं अभी ये नहीं कर सकते हम लोग, अभी तो लिया हुआ है, अभी थोड़ा आप यूज करो, उसके बाद हम लोग मोबाइल दे देंगे आपको, आप अभी छोटे हो स्कूल में जा रहे हो तो उसका यूज भी नहीं होगा। तो फिर भी ये लगा रहा उसके पीछे और फिर थोड़े दिन बाद उसने क्या किया, वो खुद से ही वो जो जहां से वो लेके आए थे गेम, तो वो शॉपकीपर से उसने अपने आप ही बात की फोन पे या जैसे भी है, और उसको बता दिया कि हमको ये गेम नहीं चाहिए, आप वापस ले लो और जो भी होता है मनी आप मुझे रिटर्न कर दो। और ये करते उसने डील भी बना दी और उसने फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को बता दिया। तो ऐसा उसका बिहेवियर है। और एक बात मम्मी ने उसकी बोली थी कि वो सेंसिटिव भी है, जब जैसे कोई डांट भी देता है या फिर मैं भी डांट दूं तो वो फौरन से नाराज हो जाता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता वो डांटना वगैरह। या फिर वो अगर गुस्सा हो गया, ये जल्दी से गुस्सा भी हो जाता है, गुस्सा हो गया तो भी फिर वो थोड़ी देर गुस्सा हो जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा मम्मी से, मतलब ये ज्यादातर गुस्सा भी नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें
वो बच्चे के बारे में बताई। तो उन्होंने एक रेमेडी दी थी जो 10 तक गए थे, लेकिन उससे कुछ रिलीफ नहीं हो रहा था। ओके, तो मैंने भी एक रेमेडी दी उसको, लेकिन उसको ब्रोंकाइटिस, उसके बाद उसको फीवर आया फौरन से, और फीवर में जो ब्रोंकाइटिस वगैरह हो रहा था तो उससे उसको ब्रोंकाइटिस में रिलीफ मिली, लेकिन हेडेक उसका इतना रिलीव नहीं हुआ। तो उसके बाद वापस मैंने थोड़ा सा रीएनालाइज किया, लेकिन मन में वो ही रेमेडी मेरे दिमाग में चल रही थी कि वही देना चाहिए, लेकिन पहले मैंने वो दूसरी वाली दे दी। तो उसके बाद वापस मैंने वो जो थी पहली रेमेडी मन में वो दे दी। उसके बाद से उसका हेडेक आया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई, और अभी 6 महीने से ज्यादा हो गया, तो अभी कुछ भी नहीं है, हेडेक का एक भी एपिसोड नहीं हुआ है, और उसके बिहेवियर में भी बहुत सारा चेंज दिखा है। तो उसकी मम्मी से मैंने ऑफिशियली परमिशन ली ये केस बताने के लिए। सो शी वाज हैप्पी एंड शी सेड कि आप दिखा सकते हो, प्लीज शेयर कीजिए। ओके, सो दिस इज द केस। जिसको एनालाइज करना है अनम्यूट करके बोल सकते हो, जो भी आपको समझाए। अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे ऐसे लगा ना, ये काफी एक ही रूब्रिक समझा मुझे एक्चुअली, पर्टिनेसिटी, क्योंकि वो 4 साल से लगातार प्रयास कर रहा है, उसने छोड़ा नहीं। तो और फिर दिया तो उसको मतलब कुछ और पसंद आया उसके बाद, एंड ही इज रेडी टू रिटर्न। यस, इतना ही समझा मुझे, रेमेडी नहीं पता। ओके ओके, ठीक है। और किसी को कुछ समझा, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कोई रूब्रिक या फिर जो भी आपको समझा हो? मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, एक तो डिस्टर्ब अवर बीइंग है, क्योंकि वो जब खेलता है गेम तो डिस्टरबेंस नहीं चाहता है। ओके, एम्बिवेलेंट डिजायर है मैम, और लगातार जैसे डिमांड करता रहता है ना, हटीला बच्चा है, पर्टिनेसिटी है। और मैम बिहेवियर प्रॉब्लम तो है ही, और जेलिसी भी है मैम। ओके, जेलसी कैसे? मैम जैसे किसी के पास कोई चीज देख ली तो वो मेरे पास भी होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ये जेलसी है मैम, एनवी या जेलिसी में से कुछ ऐसा। हाँ, जेलसी इज अ नेगेटिव इमोशन ना, और एनवी इज अ पॉजिटिव इमोशन। जैसे एनवी मतलब उसको चाहिए कि उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, और जेलसी मतलब उसके पास भी नहीं होना चाहिए, उसका टूट जाना चाहिए खिलौना। ये जेलसी हो सकता है। एनवी है, एनवी हो सकता है। ओके, तो क्या आप रेमेडी तक पहुंचे? अच्छा अरेंद्र, व्हाई नॉट ग्रीड? जी सर। व्हाई नॉट ग्रीड? व्हाई एनवी? व्हाई नॉट ग्रीड? जैसे ग्रीड मतलब क्या होता है? लालच ना, उसके पास है तो मुझे पास भी होना चाहिए, नहीं क्या मतलब? हाँ सर, लेकिन ग्रीड में जहां तक मुझे पता है, मतलब थोड़ा बहुत ही पता है मुझे, ज्यादा तो नहीं पता है सर, कि ग्रीड में अपना तो चाहिए चाहिए, लेकिन और का भी चाहिए। लेकिन एनवी में उस पे है तो मुझ पे भी होना चाहिए। उस पे उसने ऐसी कार खरीदी है तो मुझे भी खरीदनी चाहिए। तो ये ग्रीड भी हो सकता है ना, मतलब इसके वाली ये कार भी, उसके वाली वो कार भी, उसके वाली कार भी, सभी चाहिए। हाँ ये सर। envy can be felt for many people, ना, not for one thing. जी सर। तो why not greed? I am asking you. लालच मतलब हिंदी में, चलो envy का मतलब होता है कि क्या कहते हैं हम उसको, मराठी में हेवा बोलते हैं उसको, ईर्ष्या। ईर्ष्या। और लालच, ग्रीड मतलब लालच, लालसा। जैसा अभी लालच थोड़ा सा निगेटिव लगता है ना, लालसा बोले तो उसके लिए थोड़ा सा मस्त लगता है। तो थोड़ा सोचो, है ना? हेलो अरेंद्र। जी सर। थोड़ा सोचो, हमारे मानसीला स्पॉटलाइट मारना कटिंग। ओके सर। थोड़ा सोचो। हाँ मानसी मैडम आप लो। इस और किसी को कुछ बोलना है? मैम और एक थॉट आया मैम। एक तो सेंसिटिव टू रेप्रिमांड्स है, उसको थोड़ा भी कुछ बोला तो उसको बुरा लग रहा है। एंड दूसरा इज अम्यूजमेंट डिजायर, बिकॉज वो जो चीज पे लग जाता है वो मतलब एंजॉय कर रहा है और उसको बीच में किसी का डिस्टरबेंस भी नहीं चाहिए ऐसे तो। एंड फिर ऐसा ये 3 रूब्रिक्स लगाए तो फिर स्पॉन्जिया आ रहा है।
अच्छा, sensitive to reprimands. Why not sensitive to rudeness? सर रेप्रीमांड मतलब जैसे मैम ने कहा ना सर कि थोड़ा भी कुछ बोला तो उसको चुभती है बात, उसको मतलब टोकना। रूडनेस, रूड नहीं थे ना मैम, सॉरी सर, पेरेंट्स रूड नहीं थे ना सर। पेरेंट्स तो समझा रहे थे 4 साल के बाद, 4 साल तक समझा रहे थे। तो वो मान भी, समझाना is not reprimand. समझाना is admonition, advice. यस सर। So admonition, reproach, reprimand, rudeness and punishment. यस सर। So think, now you are living in an English country, so you should know all these words. सर रेप्रीमांड मतलब अरे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा किया तो ठीक हो जाता था, तो दैट इज लाइक मतलब छोटा छोटा जो करेक्शंस रहते हैं, दैट विल बी रेप्रीमांड। आई डोंट नो सर, इतना आई एम नॉट श्योर, बट ऐसे लग रहा है मुझे। Mild rebuke. Admonition is a mild rebuke. What you are talking is actually admonition. Admonition. ओके सर, यस सर। Admonition means mild rebuke. यस सर। Reprimand मतलब डांट फटकार. यस सर, डांट फटकार, यस सर। Reproach मतलब दूर कर, बहुत ज्यादा डांट के दूर कर। पता नहीं सर, अब कंफ्यूज हो गई मैं, ये केस भी क्या था। नहीं तो यही मैं बोलता हूँ, ये हम लोग क्या करते हैं ना, हमको जो रूब्रिक पता है ना, हम उसको फटाफट डाल देते हैं। यस सर। हाँ, तो instead of thinking about the rubrics, last time also I told you ना, instead of taking the rubric, use the rubric. यस सर। use the rubric. नहीं, कोर वगैरह छोड़ दो, कोर भी कुछ नहीं होता है, कोरायचं नाही, मराठीत पण कोरतो ना आपण, ते पण कोरायचं नाही, आणि इंग्लिश में भी कोर नहीं करने। समझना? तो मतलब उसको थोड़ा समझो, समझ के फिर आप यूज कर सकते हो ना। See what Dr. Hahnemann has said कि repertory is a tool. टूल मतलब क्या? टूल किट होता है ना, जैसे स्क्रू ड्राइवर, वो पाना, फिर पकड़ वगैरह, है ना, तो दैट इज टूल ना। तो यू शुड नो कि अब कौन सा पेज ढीला है, मतलब कौन सा बोल्ट ढीला है, कितने नंबर का बोल्ट ढीला है, तो उसको कितने नंबर का पाना लगने वाला है वो ढूंढना है, और कहाँ पर पेज कसना है, कहाँ पर लूज करना है ना, दैट इज यूजिंग द टूल्स, राइट। सो रेपर्टरी इज अ टूल, मतलब योर रूब्रिक इज अ टूल, so that you have to use, but before that you have to understand na, where exactly the problem is, and for that what we will use, hai na, not that what we will take, right? Yes sir. Understood na? Yes sir, thank you sir. What thank you, I confused you. कंफ्यूजन से ही सीखते हैं ना सर। करेक्शन होता है। मैम ये बच्चा कैप्रिशियस भी लगा। कैप्रिशियस, नासिर है क्या? कैप्रिशियस नासिर कौन बोल रहा है? बापू सर। अच्छा, बापू डार्लिंग, अच्छा नीरज से बोल रहा है। बापू मेरा फेवरेट बच्चा है। कैप्रिशियस, अम्यूजमेंट, डिजायर और पर्टिनेसिटी, स्पॉन्जिया आ रहा है। ओके। अच्छा, पर्टिनेसिटी, दृढ़ निश्चय। पर्टिनेसिटी में दो रूब्रिक है, एक सिंथेसिस में पर्टिनेसिटी दिया है, कंप्लीट में ऑब्स्टिनेट पर्टिनेसिटी ऐसा दिया हुआ, तो दोनों को समझो ना। ऑब्स्टिनेट पर्टिनेसिटी असं दिले ना, ऑब्स्टिनेट है काय ते, कंप्लीट मध्ये काय रूब्रिक आहे पर्टिनेसिटी ना, ऑब्स्टिनेट पर्टिनेसिटी असं, उसका सब रूब्रिक है ना कंप्लीट में, काय में देखो पर्टिनेसिटी अभी, अच्छा अभी आ गया कंप्लीट में, पर्टिनेसिटी जो, ओके ओके ओके। और कोई क्या हो गया? हेलो मैम। हाँ, जैसे आपने बताया उसका हेयर स्टाइल, तो वो फॉपिक एक लिया रूब्रिक, फिर बाद में अम्यूजमेंट डिजायर तो है, और हेडेक उसका सिर्फ स्कूल जाने के बाद होता है, तो ये फेलिंग लग रहा है। ऑब्स्टिनेट तो है ही, और जैसे उसका नेचर है थोड़ा केयरिंग, तो वैसे लैकेसिस आ रहा है, और डीडी में अगर ये 4 रूब्रिक्स लिए तो विराट भी आ रहा है।
उसकी मम्मी उसको लैकेसिस देती थी, यही सब पकड़ के, अम्यूजमेंट डिजायर एंड ऑल दैट। लैकेसिस 10M तक दिया है उसको। ओके ओके मैम। तो लैकेसिस की वजह से तो अम्यूजमेंट में नहीं चला गया ना, रूबी क्यों नहीं खेला? ओके, और किसी को कुछ बोलना है? फ्रेंड्स, जितना आप बोलोगे उतने आपको नए रूब्रिक्स पढ़ाएंगे मैडम। मैडम रूब्रिक के अंदर एक्सपर्ट है। हेलो मैडम, वैशाली बोल रही हूँ बैंगलोर से। तो हाँ, हाँ, फीनिंग सीख है। ओके। स्कूल में ये नहीं होते हैं, लेकिन घर में आने के बाद में एज ही इज जस्ट वाचिंग मोबाइल भी, तो मोबाइल आराम से देख रहे हैं। अगर हेडेक है तो इट कुड हैव एग्रीवेटेड, बट वो नहीं हो रहा है। तो फीलिंग सीख है, अम्यूजमेंट डिजायर है, और जैसे एनवी भी है थोड़ा सा। जैसे भाई कजिन का मोबाइल है तो वो उसको भी चाहिए, और तो इसके हिसाब से एक टैरेंट्यूला का फील आ रहा है मुझे। टैरेंट्यूला और डीडी स्पॉन्जिया लग रहा है। लेकिन इतना कनिंग लगता है क्या? वो कुछ किया उसने मिस कनिंग जैसा? टैरेंटिला को हम कनिंग से ज्यादा जानते हैं ना। हाँ, वो जो उसको चाहिए था तो वो मिलने के लिए जैसे उसने किया ना, वो डील भी कर दिया किसी के साथ, मम्मी पापा के बोला। हाँ, वो उसको क्या बोल सकते हैं आप? उसके लिए एक रूब्रिक लिया है मैंने। बहुत अच्छा है। उसको वो बिहेवियर जो है उसको क्या बोल सकते हैं? वो नॉर्मल है क्या? क्या है? प्रिकॉसिटी है। प्रिकॉसिटी? नहीं, नॉट प्रिकॉसिटी। मैम उसने फंसाया अपने पेरेंट्स को, तो वो डिसीटफुल है क्या? कैसे फंसाया? क्योंकि वो बताया नहीं कि वो चेंज करने वाला है। हाँ बताया, लेकिन उसने वो जाके खुद कुछ नहीं किया, खाली उसको कांटेक्ट किया और ये किया। उसी बिहेवियर के लिए एक रूब्रिक जो सर ने सिखाया है, मैनिपुलेटिव है मैम। मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेट कर रहा है। जी मैम, जोड़ तोड़ करके उसने अपना काम बना लिया। तो उसको जुगाड़ करेंगे बेटा। मैनिपुलेशन में क्या होता है ना, मैम एम्बिशन इंक्रीज मींस एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल। क्या? एम्बिशन इंक्रीज्ड, एम्बिशन इंक्रीज एवरी पॉसिबल मींस एम्प्लॉयड। एवरी मतलब एवरी आता है ना वर्ड उसमें। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्यों? उसमें एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, मतलब साम दाम दंड भेद। जी सर। एवरी इज मैम इंपॉर्टेंट। पंचटीला लग रहा है ये मैम। अच्छा, ओके। क्या बात है मैडम, मैंने 2 रूब्रिक लिए हैं। हाँ। एक्साइटमेंट डिजायर फॉर, क्योंकि वो मोबाइल एक हमेशा उसको मोबाइल चाहिए, तो एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट है उसके लिए शायद। और दूसरा लिया मैंने बार्गेनिंग, क्योंकि वो जाके वो गेम वापस दे दिया और पैसे वापस लेके आया। आई डोंट नो व्हेदर इट इज बार्गेनिंग और बिजनेस। ओके। तो मुझे थोड़ा सा 2 रूब्रिक लिए तो पल्सिटीला लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, किसने बोला अभी ये? रंजित बेटा, एक बात बताओ, एक्साइटमेंट डिजायर किसको होती है? वेयर डू यू रिक्वायर टू गेट एक्साइटेड? बच्चे को भी हो सकती है। नहीं, बट कहाँ पे, कौन से सिचुएशंस? गेम्स के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए। किसको लेकिन लगी? नहीं, एंटरटेनमेंट के तो अलग रूब्रिक है ना, एंटरटेनमेंट साउंडेड ऐसा रूब्रिक है ना नहीं, मेरे को तू जनरल बताइए, रूब्रिक छोड़ दे। एक्साइटमेंट का जरूरत कहाँ पर होता है? बहुत दिन कुछ नहीं मिला है तो आफ्टर लॉन्ग टाइम कुछ मिल रहा है तो एक्साइट हो जाता है। एक जहां पर जरूरत होती है, if it is like between, if the friends are going for some match, if you're going to get married, if you're going to, जैसे लड़की लड़के को देखने जा, लड़की को लड़का देखने आ रहा है, या फिर if it is like between husband and wife, when the love wanes, it's like menopause में excitement कम हो जाता है, one of the partner is not happy, if the one of the partner is understanding ना, कि जहां पर एक्साइटमेंट का जरूरत होता है ना, ज्यादातर ये जो आप डिजायर वाले रूब्रिक है ना, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करो। जहां पे भी डिजायर है ना,
डिजायर वाले रूब्रिक को जरूरत के साथ जोड़ने की आप आदत लगाओ थोड़ा सा। ओके। ये गाना है ना, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो ना? राइट। वो एक जरूरत जो होती है ना, वो पकड़ो आप। जहां पे भी डिजायर आएगा ना, वो डिजायर जहां पर आएगा ना, इसका मतलब कोई तो एक चीज है जो आपकी अतृप्त है। ओके समझ रहे हो ना? ओके ओके, गॉट इट। हाँ, when desire comes after there is some dissatisfaction, right? राइट। वो थोड़ा सा आप एक, तो वो रूब्रिक है ना, उसका मतलब पूरा कस लग जाएगा, एकदम निचोड़ लग जाएगा। अगर वो रूब्रिक आप उसको वैसा यूज करोगे ना, तो उसके अंदर मतलब आपका फेलियर के चांसेस 0 हो जाएंगे ऑलमोस्ट। उस तरीके से अगर आप ये भी रूब्रिक रूब्रिक है, डिजायर। जैसे किसी को चॉकलेट डिजायर है, आप समझ रहे हो ना? डिजायर इज फुल ऑफ डिजायर। हाँ, डिजायर फुल ऑफ डिजायर, समझ गए ना? मतलब ये बंदे में सिर्फ डिजायर ही है। अगर कोई एक रूब्रिक है डिजायर फुल ऑफ, मतलब आप बोलते हो यार इसका समाधान कब होने वाला है भाई, क्या क्या चाहता है तू? समझ रहे हो ना? तुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना? राइट राइट। तभी तो फिर अपन अपने ऋषि मुनि या फिर जो स्पिरिचुअल गुरु जो बोलते हैं ना कि भैया समाधान लाने की मेडिटेशन करो, समझ रहे हो ना? तब फिर आपका शराब का मन उड़ जाता है, सिगरेट का मन उड़ जाता है, चॉकलेट का मन उड़ जाता है, पिज्जा का मन उठता है, मोबाइल का मन चला जाता है। समझ रहे हो ना? तो उसकी इच्छा कब आती है आपको? किसी डिजायर मतलब इच्छा ना, मैं इसलिए बोलता हूँ मदर टंग में समझा करो। डिजायर मतलब इच्छा, एक्साइटमेंट मतलब क्या है ना? तो कुछ तो ऐसा है ना, वो क्या किक, किक ना, एक्साइटमेंट इज सॉर्ट ऑफ किक लाइक, है ना? देखो उसमें रेमेडीज क्या क्या, मेडोनाइनम वगैरह ये सब वो लोग है ना, मेडोनाइनम, हीरोइन, बहुत सारे हैं, प्लैटिना, ट्यूबरकुलाइनम, है ना, कार्सिनोसिन, है ना, कॉफिया, नाइट्रम कॉफिया भी है क्या उसमें? एक्साइटमेंट डिजायर में कॉफिया नहीं है। खैर, इसमें तो 9 है, आपकी कंप्लीट डायनामिक्स में शायद ज्यादा हो सकती है। पर ये सारी रेमेडीज कैसी है? हीरोइन, मेडोनाइनम, प्लैटिना, ट्यूबरकुलाइनम, ये सारी एक्साइटमेंट चाहने वाले लोग है ना, समझ रहे हो? तो जहां पर भी आप डिजायर यूज करोगे ना, तो वो समझ, तो वो आप उसको उस तरीके से समझ के लो। जैसे कोई मेरे पास में लोग आते हैं ना, कोई लड़की मेरे पास में आ गई समझो कि सर मुझे चॉकलेट का बहुत मन होता है खाने, है ना? कोई लड़की बोलती मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन होता है, राइट। तो मैं बोलता हूँ बेटा आपकी जिंदगी में रोमांस कम है क्या? समझ रहे हो ना? क्योंकि चॉकलेट की एडवर्टाइज वो होती है ना, लड़का लड़की वाली ज्यादातर। हाँ, चॉकलेट से लव हार्मोन्स पैदा होते हैं, ऐसा बोला हुआ है ना चॉकलेट से। जैसे किसी को शराब, मुझे शराब पीने का मन करता है, तो फिर अपन उसको सवाल पूछते हैं ना कि भैया गम है या खुशी है, क्या है, या क्यों खुद की तबीयत खराब करने के पीछे पड़े हो, क्या वजह है? समझे? तो बहुत मजा आता है आपको ना, वो टिप ऑफ आइसबर्ग से आपको आइसबर्ग से आप टिप ऑफ आइसबर्ग से आपको आइसबर्ग पहचानते आना चाहिए। ओके ओके ओके, है? तो बहुत मजा आता है। थैंक यू सर। मानसी मैडम, सॉरी आई इंट्रोड्यूस्ड इन योर लेक्चर। और कोई बोलना चाहता है या फिर मैं बोलूं? हाँ, नहीं तो मैं शुरू कर। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? मैम इसमें हम एस्केप अटेम्प्ट ले सकते हैं क्या? वो उसको स्कूल में वगैरह जो उसका एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं चाहिए उसको, वो खेलना वगैरह उसमें ही वो ज्यादा इंटरेस्ट है, तो कैन वी टेक? अच्छा, क्या बोले आप? एस्केप अटेम्प्ट्स टू? हाँ, अच्छा, पढ़ाई एस्केप करना चाहता है। हाँ, यस। अच्छा, ओके। गायत्री, व्हाई नॉट मेंटल एक्सर्शन एवर्जन टू? यस, मेंटल एक्सर्शन भी हो सकता है। हाँ, वो सब कंसंट्रेट फिजिकली नहीं कर पा रहे हाँ, हैं। कंसंट्रेट। क्योंकि स्कूल में आपको माइंड यूज करना है ना, तो मेंटल एक्सर्शन ना सादा। यस 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 यस, दैट एक्चुअली स्टडिंग एवर्जन के लिए रुब्रिक ही दिया है, मेंटल एक्सर्शन एवर्जन। यस यस यस, ये जो है ना, हम लोग इसको भाई बहन बोलते हैं। हाँ, सौतेले भाई बहन बोलते हैं रुब्रिक्स। यस यस, मेंटल एक्सर्शन उसका प्रॉपर। उसके जो चचाजाद कजिन रुब्रिक्स जो होते हैं ना, उनको ध्यान दिया करो। यस यस, श्योर। फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, डिस्टेंट कजिन, यस ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करो, आपको मजा आएगा। कजिन रुब्रिक्स, है ना? यस। हाँ, यस। मानसी, क्या फिर गायत्री क्या लेना, मेंटल एक्सर्शन एवर्जन या क्या?
मेंटल एक्सर्शन, दैट इज। तो इसलिए हिंदी में समझो ना बेटा, मैं वही समझा, मतलब ये बच्चा दिमाग नहीं लगाना चाहता है, वो कहता है Yes. दिमाग का काम नहीं करना है, तो सादा दिमाग का काम नहीं करना है, मेंटल एक्सर्शन है वो। Yes. सर है ना? लेकिन वो गेम हिंदी तो में समझो, खेलता है ना। होता हो। हाँ बेटा, सर गेम तो खेलता है, उसमें भी दिमाग तो लगता है ना। वो अम्यूजमेंट भी हुआ ना, लेकिन गेम अम्यूजमेंट है, अम्यूजमेंट है लेकिन पक्का। गेम में जो है ना दिमाग से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। बट उसने दिमाग लगाया ना सर, वो रिटर्न, वो जो गेम है वो रिटर्न किया और उसको जो नई चीज चाहिए उसी थी के लिए एक रूब्रिक ढूंढना है हम लोगों को। एक रूब्रिक है, मैडम देखो बार्गेनिंग है, रूब्रिक क्या है? बार्गेनिंग। मेंटल एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब क्या? जहां पर आपको श्रम होता है। श्रम मतलब वेयर यू हैव टू एक्सर्ट, हाँ एक्सर्ट एफर्ट, मतलब ज्यादा। एक्सर्शन इज ज्यादा, है ना। जैसे वर्क एंड एक्सर्शन में फर्क है ना, काम में और श्रम में फर्क है। हेलो, जैसे डॉक्टर का काम एक्सर्शन का नहीं होता है, वही अगर फिजियोथेरेपिस्ट का काम ले लो आप तो एक्सर्शन होता है। वही ऑर्थोपेडिशन का लो, उसकी सर्जरी घंटों चलती है, तो इट इज एन एक्सर्शन। For a homeopath, it's just like sitting in the chair and applying the band and using it. So we enjoy, right? So it is not exertion for a homeopath. Of course, if you see like 20-25 cases, जैसे मेरी शाम को हालत हो जाती है 9:30 के बाद में कि यार नहीं आज 25 नए केसेस देखा, अब नहीं देख पाओ, अब दिमाग मेरा थक गया। So exertion is after you are tired, you have to use. Okay, after getting tired also you have to work. That is exertion. Whereas in amusement desire, you are getting amusement. You are enjoying. Okay. Hello. Yes. Am I clear? Yes sir. Yes sir. Yes. Okay. Mansi madam, go to you please. Exertion for me. ओके उसका जो बिहेवियर है उसके लिए क्या रूब्रिक आप सोच सकते हो कि जो उसने किया मम्मी पापा से बिना पूछे वो शॉपकीपर्स को कांटेक्ट किया और वो सब किया, उसको क्या बोल सकते हैं? मैम मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन कैसे? मैम उसने बताया नहीं, मम्मी पापा को बताया भी नहीं, उसने अपने आप से कर लिया वो काम। हाँ मैम उसने जोड़ तोड़ करके कर लिया ना काम। हाँ नहीं, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया, जोड़ तोड़ करके उसने अपना काम निकाल लिया। आगाऊपणा म्हणू शकतो मॅडम। आगाऊपणा वाटतोय, आगाऊपणा वाटतोय ना। हो हो, हे बघा असे शब्द वापरायचे। दिस इज व्हॉट आय लाईक राजेश, वेरी नाइस। आगाऊ है ये तो ऐसा बोलो ना, मैं वही बोल रहा हूँ। ये जो आपकी माँ, देखो बुआ की भाषा में बात किया करो। बुआ कैसे बोलती है ना अपनी भाभी को, तेरा बच्चा बहुत आगाऊ है, बहुत बिगड़ गया, समझ गए ना, बहुत गंदा है, बहुत कमीना है, ये वर्ड यूज करो ना, ऐसी भाषा में बात करो ना। व्हाई यू आर टॉकिंग इन इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज? आप लोग क्या पार्लियामेंट में थोड़ी बैठे हो? हेलो, Yes sir. ये भाषा, दिस इज द लैंग्वेज आई वांट, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ प्रूवर्स। भाई प्रूविंग किसी प्रोफेसर ने थोड़ी किया है, साथ ही साथ गली के लेबर लोगों ने किया भाई। मस्त है राजा, धारी। थैंक यू सर। वर्ड तो है, और दूसरा एक रूब्रिक है जो मैंने सर से ही सीखा है। ये टाइप का जो बिहेवियर है जो उसने लिबर्टी लिया ना अपने पेरेंट्स का, मतलब वो ज्यादा आगे जाके लिबर्टी ले ली उसके, मतलब जो है फैमिली में वो अकेला बच्चा है तो उसने लिबर्टी लेके वो काम किया है। सो द रूब्रिक इज लिबर्टिनिज्म। सो अम्यूजमेंट डिजायर तो है। Libertinism is taking undue advantage of the freedom given to you, मतलब स्वैराचार, समझा? वेरी नाइस मानस। ये हम सिर्फ जैसे सेक्सुअल में यूज करते हैं, लेकिन इसका नया जो क्या बोल सकती हूँ मैं उसको, ये जो सर से मिला विजन बोल सकती हूँ मैं,
तो बच्चों में इस तरह का जो फ्रीडम लेने का जो है, स्वैराचार लेने करने का जो बिहेवियर है, उसको हम लिबर्टिनिज्म यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिबर्टिनिज्म लिया था मैंने, अम्यूजमेंट डिजायर जो सबने पकड़ा, और सेंसिटिव टू रूडनेस, पर्ट है, पर्टिनेसिटी भी है, इम्पर्टिनेंस भी है। सो दिस वाज स्पॉन्जिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अपर्णा। एंड और किसी ने तो बोला था। थैंक यू मैम, बट रुब्रिक्स इम्पोर्टेंट। और एक रुब्रिक मिला है स्पॉन्जिया का, रूडनेस ऑफ हॉटी चिल्ड्रन। सो सिंगल है शायद स्पॉन्जिया उसमें। सो जब रेट्रो पढ़ रहे थे तो ये रुब्रिक मिला था। तो इसके इसमें रूडनेस ऑफ नॉटी चिल्ड्रन, नॉटी चिल्ड्रन, हाँ नॉटी। सो नॉटीनेस भी है इसमें और थोड़ा सा पर्ट भी है। उसकी मम्मी को मैंने पूछा था कि जब ये अनॉय कर रहा है आपको, वो गेम छोड़ के वो मोबाइल लेने के लिए या फिर गेम के लिए जो भी है, तो वो टाइम पे आपका मन क्या करता है? लाफा देने का मन करता है क्या? तो उसने मम्मी ने बोला कि हाँ करता तो है, लेकिन अकेला बच्चा है तो नहीं दे सकते, मतलब मार भी नहीं सकते, तो इसीलिए वो लिबर्टी ले रहा है ये चीज की। सो दिस वाज स्पॉन्जिया। नाइस केस मैम। बट अम्यूजमेंट डिजायर फॉर और प्ले डिजायर टू में कैसे डिफरेंशिएट करने का? प्लेइंग डिजायर भी लिया था मैंने। हाँ बट जनरली लेकिन कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? किसमें? प्लेइंग डिजायर और अम्यूजमेंट डिजायर फॉर और प्लेइंग अम्यूजमेंट डिजायर। अम्यूजमेंट में उसको खुशी चाहिए ना, प्लेइंग में खाली खेलना है उसको। प्लेइंग में फिजिकल ज्यादा आता है, मतलब वो प्लेइंग का हम जो जैसे बोलते हैं ना, प्लेइंग डिजायर के लिए, प्ले करने के लिए, खेलने के लिए अपने को क्या चाहिए? पार्टनर चाहिए होता है ना, अकेले नहीं कर सकते। और अम्यूजमेंट में है जो अकेला वो मोबाइल लेके बैठा है, वो अकेला अम्यूज हो सकता है। गाना सुन लिया, उसमें उसको अम्यूजमेंट मिल रही है, किताब पढ़ ली, उसको अम्यूजमेंट हो रही है। जो भी अम्यूजमेंट के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। जंपिंग जैक पे जंप किया, हाँ। तुम्हारी वो क्या होते हैं, वो कौन सी राइड होती है? देयर आर अम्यूजमेंट पार्क्स ना, रोलर कोस्टर, एंड देयर आर प्लेग्राउंड्स, राइट? हेलो मैम। देयर आर प्लेग्राउंड्स एंड देयर आर अम्यूजमेंट। देखो, ये चीजों को समझने के लिए हम लोग जो डे टू डे लाइफ में ये वर्ड्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, उधर ध्यान दिया करो। अच्छा। तो अम्यूजमेंट पार्क, प्लेइंग ग्राउंड, राइट? राइट। Understood, na? लाइफ में वो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है ना, उस पर से आपको वो रुब्रिक समझना बहुत आसान। रुब्रिक मतलब क्या? डिसीज थोड़ी ना है एलोपैथी की जैसा, वो कुछ भी सिंड्रोम टिंड्रो थोड़ी ना लगा के रखे आपने, एंट्रिक फीवर ये वो, ऐसा नहीं है। रुब्रिक मतलब इट इज द वर्ड यूज्ड इन द कॉमन पार्लाइंस, वेरी कॉमन पार्लाइंस, राइट? बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। हम लोगों का काम छोटा हो जाएगा। आप लोग अगर ये करोगे ना, इन चीजों को समझोगे ना कि ये चीज हम कॉमनली कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बस वो एक गजल है ना कि तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। आगे क्या है? हुस्न ही हुस्न है, जलवे ही जलवे है, सिर्फ एहसास की जरूरत है। वो एहसास लाओ, बस सिंपल है ना? हेलो, हाँ जी, यस सर। मानसी मॅडम, मानसी मॅडम तुमचं स्क्रीन का काय होते मध्ये? तुम्ही कुठे जातात बरं? नेटवर्क लाइट गेली। हम इम्पर्टिनेंस और मेडल सब में क्या डिफरेंशिएट होगा? अरे बहुत अलग मेडल सब मतलब नाक घुसाना ना, दूसरों, जब दो लोग बात कर रहे हैं तो उसके बीच में नाक घुसाना। अभी जैसे लेक्चर चल रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में तीसरा कोई अगर आ जाता है और अपनी ही बात आगे करना तो उसको नहीं। Sorry, no, I am not medal, sir. I am just anxious. You are guru sir, आपको नहीं बोल सकते। सर सिखा रहे हैं। तो जैसे बच्चे भी रहते हैं ना, जैसे पेरेंट्स बात कर रहे हैं और बच्चे बीच में आके अपनी ही बात आगे करके, वो उनकी बात छोड़ के अपनी बात बीच में घुसड़ देना,
जैसे केस टेकिंग में भी होता है ना, हम लोग अगर किसी कपल का केस ले रहे हैं और वाइफ से पूछ रहे और हस्बैंड बीच बीच में बोल रहा है, तो उसको भी हम लोग मेडलसम ले सकते हैं। और मेडलसम का और एक मतलब है लुड़बुड़ करना, बीच बीच में लुड़बुड़ करना, समझ रहे हो ना? मतलब जैसे आप देखो ना कि केस चल रहा है किसी का, मतलब बेगानी शादी, मेडलसम मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना? मतलब जैसे आप देखते हो ना कि अपना, कई लोग ऐसे आपको टेलीग्राम पे आपको ग्रुप्स में मिलेंगे, 15, हम लोग तो 20-25 ग्रुप्स में, तो वहां पे कोई नहीं भी रहे तो भी आप वहां पे जिसका केस चल रहा है तो ये जाके आंसर करेंगे उसके क्वेश्चंस को, उनके केसेस वहां जाके पोस्ट करेंगे, समझ रहे हो ना? ऐसे भी आपको कई महाभाग मिलेंगे बीच बीच में अपनी, इट इज अ इरिटेटिंग थिंग, आफ्टर अ व्हाइल यू रियलाइज कि दिस मैन अपने अंदर लुड़बुड़ कर रहा है ना? तो क्या बोलते हैं उसको, मेडलसम को नाक खुपसना बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं टू पोकिंग योर नोज, यू आर पोकिंग इट इनसाइड इन बिटवीन, ओके? और क्या क्या कैसे डीडी पूछा था इन्होंने? इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस का मतलब क्या है? अगौपना। इम्पेशंस और पर्ट दोनों मिला के इम्पर्टिनेंस बोलना, इम्पर्टिनेंस म्हणजे आगाऊपणा. बोलो और कुछ. मैं स्पॉन्जिया मैडम बोल रहा था, मानसी मैडम की वजह स्पॉन्जिया मैडम बोल रहा था. सॉरी. और कुछ क्वेरी है किसी का? मैडम, what type of behavior problem was this allopathically of this child diagnosed? If you, is it a conduct disorder or what exactly was the diagnosis allopathically speaking? ODD बोल सकते हैं, अपोजिशनल, मतलब वो डिफाइंस कर रहा है ना अथॉरिटी. ODD. मैम मुझे एक पूछना था, ये पर्ट रूब्रिक थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है? हाँ, वही पूछा ना मैंने, उसका जो बिहेवियर, अनोइंग जो बिहेवियर है किसी का, और आपको अगर मन करे कि इसको एक उठा के थप्पड़ दे दूं जोर से, मतलब जो आगाऊ, मराठी में उसको वही सही वर्ड है आगाऊ बोलते, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं उसको, लेकिन जो वही आगे आगे जाने की कोशिश करता है ना, और आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा आगे जाके कुछ बोल रहा है जो कि जरूरी नहीं है उसके हिसाब से, तो आपको मन करता है कि इसको चुप कराना चाहिए या फिर कुछ जोर से उसको बता देना चाहिए कि ये आप कर रहे हो गलत है. मतलब उसने जो गेम के बारे में किया, शॉपकीपर से जाके डील किया, वो बिहेवियर के लिए हम यूज कर सकते हैं. हाँ, उसके लिए कर सकते हैं. हाँ. और इम्पर्टिनेंस मतलब फिर? इम्पर्टिनेंस का भी मतलब वही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हॉटीनेस और ज्यादा आ जाता है इम्पर्टिनेंस में. थैंक यू मैम. अविचारीपना, मतलब जो बिना सोच समझ के जो करते हैं ना, उसको इम्पर्टिनेंस लेते हैं. ओके, थैंक यू मैम. आपको पर्ट का एक एग्जाम्पल पता है? आजकल एक हीरोइन है जो कुछ भी बकती फिरती है, कंगना. हाँ, रन आउट वगैरह ऐसा कुछ नाम है, कंगना. यस यस, समझ गए ना? यस. सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल. वेरी नाइस. और एक वो कोई तो नाचती है, वो बहुत सावंत कुछ तो नहीं है वो, राखी सावंत. समझ रहे हो ना? एकदम सामने आपके एग्जांपल्स. राइट. समझ गए? जी बिल्कुल. मैं बोला ना, आपके आसपास ढूंढो, बहुत मजा है. सब कुछ आसपास है. हनुमान के पिताजी ने हनुमान को क्या पढ़ाया था? The truth we mortals need us make to bless and keep the all wise slightly covered over but did not worry it. समझ गए ना? मतलब हनुमान के पिताजी ने हनुमान साहब को क्या पढ़ाया था, वो ध्यान दो ना, तो सब आ जाएगा. तो इसीलिए अपने बाप ने जो आपके बातें बोली रही थी ना, उस पर ध्यान दिया. सिंपल है.
ये बहुत गहराई में बहुत ज्यादा हम लोग बोलते ना, अभी मैं ये मंजरी को बोला ना कि कोरत कोरत बसाई से नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डिड नॉट वेरी डीप, ज्यादा वो कुरेदते नहीं बैठने का, ज्यादा खदेड़ते नहीं बैठने का, अंदर अंदर। मैं जब लेक्चर लेता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ जितना तुम गहरा खोदोगे खोदोगे तो जमीन के पेट में क्या है, पहले तो पत्थर लगेंगे, उसके बाद में पानी लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, लावा लगेगा, तो जल जाओगे, कुछ नहीं आएगा हाथ में। तो वो 2-2 दिन की केस टेकिंग और वो सब कुछ है ना। ठीक है सर, ओके, मतलब it is an ordeal for the patient, you know, sometimes to go to homeopath. It used to be that. That is why we, like, you know, like people like me, you know, we became a fan of mind method, and then we explored things and we tried to make it very simple. Right. It is already simple, okay, but I am trying to make it simple according to our society, our social norms, our language. Yeah. Yes, sir. Yes, Thank sir. you so much. Thank you. Neetu has something to say. Neetu Pandey जी बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। मुझे एक ये चीज अभी जो मैम ने बोला ना कि अगर कोई बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है और आपका लाफा देने का मन कर रहा है और आप उसको रोकना चाहते हो, तो उसके लिए एक रूब्रिक बोला उन्होंने, बट मेरे से सर वो मिस हुआ, मैं वो उसको समझ नहीं पाई। Impertinence. पर्ट हाँ, पर्ट से impertinence. ओके मैम, एक बार इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे मैम? मुझे मतलब अभी इसको एग्जैक्ट किस चीज के लिए यूज कर रहे, मैं उसको अभी भी नहीं समझ पाई हूँ। सर ने अभी एग्जांपल दिया ना, जो आगे आगे जाके बोलते हैं ना, अभी जो बोल रहे हैं हीरोइंस का जो एग्जांपल दिया, सुना आपने? यस मैम। हाँ, तो वही पर्ट है उसके, इससे ज्यादा और कुछ उसका एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, इतना सिंपल सर ने बता दिया है। वो ऐसा लगता है ना बहुत मुफट है और बहुत ही ज्यादा, मतलब यू नो इट्स चीप, it's very close to cheap, it's very close to cheap, remember that, okay, but it's very close to cheap. इस बच्चे ने तो सर ऐसी हरकत, मतलब ये जरूर है कि उसने टॉय को जाकर अपने लिए, शुरुआत है ना बेटा, देखो क्या होता है ना, शुरुआत में पकड़ना होता है ना। हमने कैच देम यंग बोल के एक मैनेजमेंट की बुक में एक डिक्टम है, कैच देम यंग, मतलब पहले ही पकड़ लो। अगर आपने केंट सर की फिलोसफी पढ़ी होगी तो उसमें शायद पेज नंबर 5 या 7 पे डॉक्टर केंट ने एक एग्जांपल दिया था निमोनिया का। काली बाई जब पढ़ा उसके अंदर उन्होंने काली बाई का जिक्र किया, तो डॉक्टर केंट कहते हैं कि द डार्टिंग पेन, द पिन पॉइंट पेन इन द चेस्ट, ओके, वी होम्योपैथ गिव द रेमेडी काली बाई, and the so-called modern medicine doctors will wait for the pneumonia to set in. Yes. Do you understand? तो हमको उसको पहले ही पकड़ लेना है। मतलब हम लोग मराठी में एक कहावत है, पुताचे पाय पाळण्यात ओळखायचे, मतलब बच्चे के पैर वो बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, पालने में ही दिख जाना चाहिए। वही तो हमको पकड़ना है ना, होम्योपैथ का वही तो है ना, आप पहले ही पकड़ लो। जैसे बच्चे ने अगर गाली दिया या बच्चे ने अगर आपने उसको 2 रुपए दिए कोई सामान लाने के लिए और 1.5 रुपए का था, उसने 50 पैसे दिए नहीं वापस, तो तभी से आपने पकड़ लेना है कि अरे यार ये कुछ बड़े चीज की है ना, ये कुछ साइन है, तो पहले ही पकड़ लिया ना अपने पर्ट। तो जो एक रिएक्शन आ जाता है ना पर्ट में कि यार सर लाफा लगाने का मन होता है ना इसको, क्योंकि आप सोचो ना एक बच्चा आपके इंफॉर्मेशन के बगैर, जैसे वीडियो गेम इज कॉस्टिंग लाइक 5,000 10,000 रुपीज, इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। हम लोग के हाँ, आपके रिसेप्शनिस्ट को पगार कितना है? 5,000 6,000। आपकी घर के डोमेस्टिक हेल्प वाले जो है उनको कितना होता है पेमेंट? 2,000 3,000, सही है कि नहीं? जो बर्तन, हाँ, तो बर्तन मांगने वाली का पेमेंट है उतना, उससे ज्यादा का है। मतलब एक बंदे को, एक इंसान को पूरा महीना काम करने के बाद में जितना पेमेंट मिलने वाला है और उस चीज को ये अपना ही खुद ही निर्णय ले रहा है कि जाके बेच दे रहा है और फिर उसको उधर ये करना चाहता है। मतलब ये कितनी लेवल तक ये ऑब्स्टिनेट होता जा रहा है, हॉटी देता होता जा रहा है और स्पॉइल होता जा रहा है।
मतलब डोंट वेट फॉर द एक्सट्रीम टू डेवलप ना बेटा। जैसे गैंग्रीन को भी हम बहुत पहले पकड़ लेते हैं ना, इसमें डायबिटिक फुट में हम लोग पहले ही पकड़ लेते हैं कि यार ये डायबिटिक, ये गैंग्रीन की तरफ जा रहा है, यार ये नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है, बराबर ना। हमको पहले ही पता चल जाता है ना, जब उसको बर्निंग होने लग जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, थोड़ा सा काला होना शुरू हो जाता है, तो हम पहले ही पकड़ लेते हैं यार ये नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है, गैंग्रीन की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर अगर स्टूल्स फाउल आने लग गए तो समझ लो कि अंदर गैंग्रीन, अंदर फंगस डेवलप हो रहा है उसकी आंत में, इंटेस्टाइन में, है ना। तो वही आगे जाके म्यूकरमाइकोसिस का रूप लेता है, वही आगे जाके गैंग्रीन का रूप ले लेता है। तो हम लोग होम्योपैथ्स क्या होता है ना, हम लोग इसको बहुत पहले पकड़ लेते हैं। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि क्लिनिकल डायग्नोसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डायग्नोसिस मेड बाय द इन्वेस्टिगेशन। क्लिनिकल डायग्नोसिस में आप बहुत अर्ली साइंस पकड़ लेते हैं, है ना। जैसे किसी लड़की में छोटी सी भी मूछें दिखाई देने लगे या यहाँ पर बाल दिखाई देने लगे तो हम लोग हिर्सुटिज्म पहले पकड़ लेते हैं ना। हम लोग उसको पूरा एकदम बदन पे बाल आने तक के रुकते नहीं, हम लोग इमीडिएटली उसको हिर्सुटिज्म की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं ना बेटा, होम्योपैथ्स। समझ रहे हो? ओके मानसी, आई थिंक Yes. it's fine. Thank you, sir. Thank you everyone for joining, and thank you Liaquat sir for arranging this series and giving us platform. और मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों को भी ये शेयर करना है अपना नॉलेज तो जरूर कीजिए, और आगे आइए, शेयर करेंगे तो और भी उससे हम सीखेंगे। जितना हम शेयर करते हैं उतना ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि जो रूब्रिक हम सीखते नहीं है, जब केस लेते हैं तो 3-4 रूब्रिक ले लेते हैं, रेट्रो करते हैं अपने आप से, लेकिन अगर हम शेयर करते हैं तो उससे और भी चीजें अपने को सीखने को मिलती है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जिनको भी करना है, शेयर करना है, आप प्लीज आगे आ जाइए, और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हमारी तरफ से पूरी मिलेगी। मतलब जो भी करना है उसका टेक्निकल जो भी है इश्यूज, तो वो हम लोग हेल्प करेंगे। और थैंक यू माय PHF टीम फॉर सपोर्टिंग, एंड थैंक यू एवरीवन। दीपाली। Thank you, Thank you, sir. Mansi. Thank you, Mansi. Thank you for the wonderful session. Thank you. अभी ये पर्ट स्पॉन्जिया कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you आपके for सिवाय the तो सर कुछ हो ही नहीं सकता। Thank you for being a wonderful host. Dipali and Mansi are very close friends, by the way, guys. If you all don't एंड know. सर मुझे होम्योपैथी की तरफ ये रास्ता दिखाने का कारण भी वही है। पहले मैं जीपी करती थी, लेकिन उसने आपसे मिलाया और जिंदगी बदल गई। So sweet. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।